Okay. Sir, what's the topic name? Effective uses of? This is effective reading skills. Effective reading. Reading skills. So Yes, today's topic is effective reading skills. That is what we should do to increase the speed of our reading or improve the comprehension of our reading. That is to say, yes, whatever we read in English, we should be able to read it faster. And secondly, we should be able to understand fully whatever we are reading, right? Because see, yes, sir. everything that you are reading, even if it's there for your examination, or if you are reading in general, even if you're surfing the internet, everything is there in English, right? So that's what we know. Yes, sir. So if we are able to increase our reading skills, rather the speed of our reading, so you will be able to comprehend at a much faster rate. Okay. Yes, sir. So you will be able to understand things at a much faster rate. So if you do that, you'll become more efficient. Okay. Now, what do I mean by efficient? Efficient is being smart. Now, what is being smart in terms of reading? In terms of reading, you'll be able to read more in less time. So, Less time, yes, sir. so if that is the intention, I think this chapter, today's topic is very important for you. You will be able to read at a much faster phase, much faster pace once you are through with this chapter, right? So let's get started. Yes. So reading it is to mind what exercise is to body. The more you exercise, the fitter is your body. So that's what we understand. So the more you read, the more sharp your mind will become. Okay. So reading is to mind what exercise is to body, which means the more you practice reading, the better reading skills you will have. You will be able to read at a much faster rate. Similarly, if you exercise daily, you will have a healthy body, right? So effective reading skills. What are effective reading skills all about? A skill which enables us to understand a message is called a reading skill. Okay. So if you get a written message and you are able to understand it well, it means that you've got good reading skills. है ना, कोई भी आपको लिखित मैसेज आता है और आप उसको बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, then it means that you are possessing good reading skills. अब ये होना जरूरी क्यों है? Because everything that you will read once you are in your profession or even right now, it's there in English. Your textbooks are in English, the newspaper is in English, the examinations which you are going to attempt will be in English, right? So everything will be in English. ठीक है, ये आप समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. Okay. So what is reading about? Reading is about recognizing the written word. तो हमको सिर्फ रीड नहीं करना है, साथ साथ में कॉम्प्रीहेंड भी करना है. कॉम्प्रीहेंड मतलब कि अंडरस्टैंड, मतलब कि हम जो पढ़ें वो तेजी से पढ़ें और साथ में हमको तेजी से समझ में भी आए. तो दैट इज कॉल्ड अ रीडिंग स्किल. स्किल कैसे आती है? प्रैक्टिस से. तो यानी कि इसमें लिखा है ना, रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज टू बॉडी. मतलब जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग का, उतना हमारी रीडिंग्स की स्पीड इंप्रूव होगी और हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगा. मतलब हमको समझने की शक्ति हमारी इंप्रूव होगी. सो the more you practice reading, the better it will be for you. Now, how to read? So that will come to later. First of all, let's understand the basic thing. So recognizing the reading written word is called reading, and understanding the meaning of the text is called reading comprehension. जो भी लिखा है उसको अंडरस्टैंड करना, मतलब कि आपका कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड. कॉम्प्रीहेंशन मतलब किसी चीज को समझना. तो लिखित वर्ड को समझने को इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं. ठीक है. अब रीडिंग का मतलब ये भी होता है कि यू शुड बी एबल टू ग्रास्प इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. है ना. क्या होता है कि जैसे कुछ भी आपको कोई आपने सामान खरीदा, उसके साथ एक मैनुअल आता है. मान लो आपने एक कुछ भी, जैसे कि आपने वैक्यूम क्लीनर खरीदा, तो उसको कैसे अपन ऑपरेट करें, तो साथ में मैनुअल आता है. मतलब उसमें रिटन इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, तो आपको पढ़ने पड़ते हैं, है ना. तो हाँ, हमारी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, तो हम कोई भी चीज पढ़ के उसको समझ सकते हैं. ठीक है. तो व्हाई डू वी रीड? द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी रीड. एक तो होता है कि क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं इसलिए हम पढ़ते हैं, और दूसरा होता है कि हमको
प्लेजर मिलता है, जैसे कि नॉवल पढ़ने से प्लेजर मिलता है। तो एक पढ़ाई करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन लगता है, वो होती है टेक्स्ट बुक्स। दूसरा, Yes, हम कोई sir. नॉवल पढ़ते हैं, कॉमिक पढ़ते हैं, तो हमारा एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है। लेकिन दोनों चीजों में हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये तो तय है ना कि हम जब टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तभी भी पढ़ रहे हैं, और नॉवल पढ़ रहे हैं तभी भी पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं तभी पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज को Yes, पढ़ने sir. से सर में दर्द हो रहा है, एक चीज को पढ़ने से मजा आ रहा है। तो ये क्या क्या डिफरेंस है, आप बताओ नेहा। सर, एक में हम लोग अपनी खुशी से पढ़ रहे हैं, जैसे कि स्टोरी बुक्स हैं, तो हाँ उसमें प्लेजर मिल रहा है। और सर हाँ एक है जैसे एग्जाम टाइम में कुछ बुक्स इंटरेस्टेड की नहीं है बट फिर भी पढ़ना पड़ता है, हाँ, नहीं तो नहीं, फिर देखो उससे। इसमें यह है कि एक तो हम अपने अपनी खुद रजामंदी से पढ़ रहे हैं ना, हमारी हॉबी, हॉबी कह सकते हो आप, यस, कि जैसे मेरी हॉबी है यस। नॉवल पढ़ना, मुझे डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़नी अच्छी लगती है, तो मेरी हॉबी हो गई। और दूसरा मतलब कि दूसरा ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने से हमारा थोड़ा सर में इसलिए दर्द होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हो यस बेटा, सर। आपकी टेक्स्ट बुक यस, में आप अपनी टेक्स्ट बुक को नॉवल की तरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो डीप इन डेप्थ रीडिंग मांगती है ना। यस सर। अच्छा, आप अपनी रिलीजियस कोई बुक पढ़ते हो, जैसे कि रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा, उसको पढ़ने का यस, सेम तरीका होता है जो कि टेक्स्ट को पढ़ने का होता है, बोलो। नो सर। बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब नॉवल या मैगजीन पढ़ते हो, जब किसी, जैसे मान लो किसी फिल्मी कलाकार के बारे में पढ़ लो, तो क्या उसको पढ़ने का तरीका सेम होता है? नॉवेल्स। हाँ, मान लो मैं आपको एक मैगजीन दी, उसमें फिल्मी दुनिया के बारे में है, उसमें अक्षय कुमार है, उसमें करीना कपूर है, तो उसको जब आप पढ़ोगे, क्या वो तरीका आपका क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के तरीके से मैच करेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा। तो कुल मिला के द क्रक्स ऑफ द होल थिंग इज दैट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल, राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। हनुमान चालीस को पढ़ने का अलग अलग तरीका है, केमिस्ट्री की किताब को पढ़ने का अलग तरीका है, बिजनेस कम्युनिकेशन को पढ़ने का अलग तरीका है, और लास्ट में आपका नॉवेल्स पढ़ने का अलग तरीका है। ये तो समझ में आ गया ना बेटा नया? यस सर। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो रीडिंग स्किल्स और टेक्निक्स दैट आर अप्लाइड फॉर रीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट। सो व्हाट आर रीडिंग स्किल्स? रीडिंग स्किल्स आर टेक्निक्स which are applied while reading different kinds of text। मतलब कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपको उस तरह की टेक्निक उस पर लगानी पड़ेगी। यानी जो टेक्निक आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पे पढ़ने के लिए लगाते हो, सिमिलर टेक्निक आप नॉवल में नहीं लगा सकते, वो तो पढ़ने का तरीका अलग होता है ना। यस सर। आप एक बारी में, एक सिटिंग में अपने टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर पढ़ पाओगे, और हो सकता है कि इंटरेस्ट के कारण आप नॉवल 3 घंटे में पूरी किताब निपटा दो, पॉसिबल है ना। यस। हाँ, यस सर। तो इसका मतलब यह है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट, मतलब कि जो टेक्स्ट क्या होता है, जो हमारे सामने रिटन डॉक्यूमेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट विल रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, और इसी अप्रोच को बोलते हैं रीडिंग स्किल्स, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक कानूनी नोटिस आता है ना, आपके पास एक कानूनी नोटिस आया कि आपने फलाने फलाने दिन एक रेड लाइट क्रॉस कर दी, और ये फोटो है, आजकल वो होता है ना, ऑटोमेटिक फोटो खींच के घर पे आ जाती है। यस तो सर। उसको पढ़ने का तरीका अलग होगा, होगा कि नहीं? कोई ग्रीटिंग कार्ड आएगा तो उसको पढ़ने का तरीका अलग होगा। यस सर। बस यहीं से शुरुआत होती है टाइप्स ऑफ रीडिंग की, है ना। अब हमको ये देखना है कि कितने प्रकार की या टाइप्स ऑफ रीडिंग होती है। ठीक, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर, इट्स विजिबल। तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ रीडिंग टाइप्स, 6 टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स आर देयर। टेक्निक्स मतलब तरीका, है ना। तो टोटल 6 यस टाइप्स सर। ऑफ रीडिंग टेक्निक्स आर देयर, विच आर skimming, scanning, intensive reading, extensive reading, word to word reading and speed reading। ठीक है, इसको एक बार पढ़ के सुनाओ बेटा 6 को। Yes, sir. Types of reading techniques are: first, skimming; second, scanning; third, intensive reading; fourth, extensive reading; fifth, word-to-word reading; and sixth is speed reading. हाँ, अब हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। स्किमिंग, स्किमिंग क्या होता है कि इट इज अ क्विक फॉर्म ऑफ रीडिंग, ठीक है। अब
जैसे कि आप टू व्हीलर चलाते हो, Yes, sir. ठीक है, आप टू व्हीलर चलाते हो तो रेड लाइट आती है तो आप रुकते हो? Yes, sir. रुकना तो चाहिए, वैसे हाईवे पे नहीं चलाती। हाँ, नहीं हाईवे पे तो नहीं चलाना चाहिए। आप वैसे जब शहर में चलाते हो तो रेड लाइट आती है तो रुकते हो ना। Yes, sir. जब आप रुकते हो तो कभी कभी क्या होता है कि वहां पर कुछ लोग पैम्पलेट्स बांटते हैं, जैसे कि कोचिंग का पैम्पलेट हो गया, वेट गेन का, वेट लॉस का पैम्पलेट होता है ना, कोई आ जाता है आपको हाथ में, कहीं एडमिशन, कॉलेज के एडमिशन का पैम्पलेट होता है, हाथ में थमा देता है, हुआ कभी ऐसा? हाँ। Yes, sir. आप क्या करते हो कि एक बार उसको, जो पैम्पलेट है उसको क्विकली देखते हो कि क्या आपके काम का है कि नहीं, देखते इसकी हो? जो मेन हेडिंग होती है वो। मतलब क्विकली आप पूरे पैम्पलेट, छोटा सा होता है तो आप उसको क्विकली देख लेते हो कि आपके काम की चीज है कि नहीं, मतलब क्योंकि आपका Yes, टाइम भी कम रहता है, कुछ समय के बाद वो रेड सिग्नल ग्रीन होने वाला है। तो जब आप ये करते हो तो आप कौन सी टेक्निक अपना रहे हो? तब आप अपना रहे हो स्किमिंग। अगर आपको लगा कि वो पैम्पलेट काम का है तो आप जेब में रख लेते हो या अपनी स्कूटी की उसमें रख देते हो बास्केट में। अगर आपको लगता है कि काम का नहीं तो फेंक देते हो ना। Yes, sir. इसी टेक्निक को कहते हैं स्किमिंग। समझ गए आप? Yes, sir. मतलब किसी भी चीज को जल्दी से देखना और उसको समझना कि उसका आपके काम की है कि नहीं, या फिर उसका ओवरऑल मीनिंग समझना। सो स्किमिंग इज क्विक रीडिंग टू नो द जनरल मीनिंग ऑफ द पैसेज, to know how passage is organized and to get an idea about the intention of writer. For example, आपके सामने सुबह सुबह एक अखबार आता है, न्यूज़पेपर, राइट? तो एकदम से क्या करते हो आप? फर्स्ट पेज को स्किम करते हो ना, और फिर उसमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ते हो जो आपके इंटरेस्ट का है, होता है कि नहीं? Yes, sir. आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है, Yes, sir. तो न्यूज़पेपर जब आता है तो उसको कैसे पढ़ते हो, शुरू कैसे करते हो? Sir, with that bold letters headline. हाँ, मतलब अपन जरूरी नहीं है कि हेडलाइन ही पढ़ते हैं, हम सबसे पहले पहला पन्ना देखते हैं, उसमें से स्किम करते हैं, और उसमें अगर हमको कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज लगती है वो वाला कॉलम पढ़ते हैं। हेडलाइन तो आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, वो आपका ध्यान आकर्षित करता है कि नहीं? Yes, sir. कभी ऐसा होता है कि आपने न्यूज़पेपर उठाया और पूरा लेफ्ट से शुरू किया और एकदम 24 के 24 पन्ने पढ़ लिए और राइट पे जाके आखिरी पेज पे खत्म किया? कभी? No, sir. कभी नहीं करते, कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब लोग स्किमिंग करते हैं। स्किमिंग का क्या मतलब है? मतलब कि एक पेज में से अपने काम की चीज निकालना और फिर उसी कॉलम को पढ़ना, उसको पढ़ना, इसे ही क्या करते हैं? Yes, sir. जैसे कि हम लोग Skimming. हाँ, कभी हम रुकते हैं तो कोई हाथ में हमारे पैम्पलेट पकड़ा देता है, हम उसको देखते हैं हमारे काम का है कि नहीं, उसको फेंक देते हैं, राइट? सो स्किमिंग इज Yes. क्विकली, एकदम फटाफट एक चीज को ओवरऑल सुपरफिशियली पढ़ना एंड टू कंक्लूड कि हमारे काम का है कि नहीं, या फिर उसका ओवरऑल मीनिंग को समझना, इंटेंशन को समझना, इसे कहते हैं स्किमिंग। ठीक है ना? Yes, sir. जैसे कि मान लो अभी आप कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो बेटा? Sir, CSEET. हाँ, आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा उसका, मान लो आपके पास हार्ड कॉपी आई क्वेश्चन पेपर की, आप एग्जाम में बैठ गए, है ना? Yes, कल आपका एग्जाम है, कल आप गए एग्जाम में बैठ गए और आपके सामने जो इन्विजिलेटर है उसने क्वेश्चन पेपर दिया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? स्किम करोगे ना? yes, sir. Go through करेंगे पहले गो थ्रू करेंगे और उसके बाद लिखना शुरू करते हो। हर कोई यही करता है। जैसे एग्जामिनेशन के समय क्वेश्चन पेपर जो आपके हाथ में आता है तो हम उसको फटाफट फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है, और देखते हैं कि अच्छा इसमें से एक करना है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 ऑप्शन में से 2 करने हैं, अच्छा 3 चौथे में से 1 करना है। हम जब पूरा फटाफट कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? Sir, skimming. स्किमिंग। आप समझ में आ गया? मैं आपको 3-4 एग्जांपल दिए। Yes, sir. Clear. कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश व्हाट इज स्किमिंग? Yes, sir. Sir, sir, skimming reading means to go through the crux of the what is the paragraph and what information we need. We read only that. Skimming is quickly reading something to get the overall summary, overall idea, Summary. है ना? आइडिया। Yes, sir. क्विकली रीडिंग मतलब क्विकली आपने अपना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पढ़ा ताकि ओवरऑल पता चल जाए कि इजी पेपर आया है कि डिफिकल्ट आया। ये करते हो ना बेटा? Yes, sir. और न्यूज़पेपर को भी हम यही करते हैं। हम पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, उसमें से किसी भी एक पेज को स्किम करते हैं
फिर उसमें से अगर फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल पढ़ते हैं, किसी एक्टर के बारे में पढ़ना है तो एक्टर के बारे में पढ़ते हैं, कोई अपने काम की न्यूज है तो उसको पढ़ते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्किमिंग। स्किमिंग। अब समझ में आ गया ना? ठीक है, यस सर। ये हो गई पहली टेक्निक। पहली टेक्निक इज कॉल्ड स्किमिंग। इन दिस वी रीड क्विकली टू फाइंड आउट द ओवरऑल मीनिंग, या फिर व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द राइटर, या एकदम से उसको देखना कि हमारे काम की है कि नहीं है। इसे कहते हैं स्किमिंग। जो कि किसी भी चीज को आपके हाथ में मैं कुछ भी दूंगा ना पढ़ने को, सबसे पहले आप स्किम करते हो कि ये है क्या भला, अरे ये भला क्या है, तो फटाफट देख के कि ये मेरे काम की है कि नहीं, क्वेश्चन पेपर इजी है कि नहीं, न्यूज़पेपर में कौन सा क्या पढ़ना है। हम हर समय स्किम करके चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ना? यस सर, क्लियर। हाँ, अब सेकंड पे आते हैं, स्कैनिंग। अब जैसे कि अभी आपका 12th का रिजल्ट आ गया। यस सर। ठीक है, कितने परसेंटेज आए? सर 92। अरे वाह, वेरी गुड। तो अब यस सर। जब आपका रिजल्ट आया तो कहाँ डिस्प्ले हुआ? सर ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे। हमारे जमाने में क्या होता था कि ब्लैक बोर्ड पे, मतलब स्कूल के बाहर जो ब्लैक बोर्ड होती थी ना, उस पर चिपकाया जाता था। यस सर। अब मान लो तुम्हारे क्लासरूम के बाहर तुम्हारा रिजल्ट अगर ब्लैक बोर्ड पे चिपका दें, मतलब छोटे से नोटिस, सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं, नोटिस बोर्ड है ना, तो उसमें मान लो ऊपर लिख दिया जाए 90% के ये वाले रोल नंबर है, 80% के ये वाले हैं, तो आप क्या रिजल्ट को कैसे देखोगे? सर रोल नंबर वाइज। अपना रोल नंबर, पूरे रोल नंबर इसमें खोजोगे, यही करोगे ना? यस सर। अब मैंने एक लिस्ट निकाली पास की, और उसके बाजू में लिख दिया पास और दूसरा लिख दिया फेल, तो आप सबसे पहले पास में जाओगे और अपना रोल नंबर खोजोगे, खोजोगे कि नहीं? यस ऐसे सर। करोगे, ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखोगे कि मेरे रोल नंबर का आखिरी अंक इसमें आ रहा है कि नहीं, ये करोगे ना? हाँ सर। अच्छा, एक तो ये आपको समझ में आ गया कि हम अपना रिजल्ट देखते हैं तब। दूसरा, मान लो आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है और लॉटरी का जो रिजल्ट है वो न्यूज़पेपर में आया, मतलब न्यूज़पेपर में वो लॉटरी के सीरियल नंबर आए जिनको 1 लाख रुपए का इनाम मिला है, और वो पूरा एक पेज भरा हुआ है, तो आप उसको कैसे अपने लॉटरी के टिकट को उससे कैसे मिलाओगे, कैसे देखोगे? सर जो लॉटरी नंबर होगा वो ढूंढेंगे उसमें। मतलब पूरा जो उन्होंने छापा है उसमें से अपना पर्टिकुलर लॉटरी नंबर देखोगे ना? यस सर। हाँ, वैसे ही अपना पर्टिकुलर रोल नंबर देखोगे ना? यस सर। हाँ, तो जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से हम एक चीज देख रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्कैनिंग। स्कैनिंग। यस सर, टू स्कैन। स्कैन करना, कि हम वी आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि वो स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा रोल नंबर हो सकता है, हमारा लॉटरी का टिकट हो सकता है, या फिर जैसे आप जब ट्रेन पे जाते हो, ट्रेन में गए ना, घूमने गए, पहले जाते थे ना, तो अपना जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसके सामने रिजर्वेशन का या फिर आपका टिकट नंबर डिस्प्ले रहता है ना? सर पता नहीं, मैं ट्रेन में नहीं बैठी कभी। कभी नहीं बैठी? नो सर। अच्छा, प्लेन में बैठे? नो सर। अच्छा, ट्रेन में कभी नहीं गए आप? नो सर, हम लोगों को कभी ऐसे जाना ही नहीं हो पाता कहीं, हमारे सारे रिलेटिव्स वगैरह भोपाल में ही है तो। अच्छा, नहीं, पर कभी घूमने घामने कभी नहीं गए? हाँ सर, एक बार गए थे जम्मू कश्मीर, बट इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि ट्रेन के डिब्बे में जैसे हम चढ़ते हैं ना, तो जैसे मान लो मेरे यस ट्रेन सर। के कोच का नंबर है S7, है ना, तो S7 की जहां से एंट्री होती है उसी के बाजू में जो टीसी होता है, टीसी टिकट चेकर, वो पूरा चार्ट यस जो है सर। चिपका देता है। ठीक है, हाँ। अब एक ट्रेन के डब्बे में 72 सीट्स रहती हैं, 72, तो वो क्या रहता है, यस। सीट नंबर 1, उसके सामने नाम लिखा रहता है, मेल फीमेल एंड एज, ऐसे करके पूरा 1 से लेकर 72 तक रहता है। तो वहां पर यस भी हम सर। कौन सी टेक्निक अपनाते हैं? जो हमारी सीट नंबर है वो चेक करेंगे। वो मतलब वी आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो क्या करते हैं वहां? स्कैनिंग ना। स्कैन। यस सर। वहां स्किमिंग नहीं करते, वहां हम लोग वी आर लुकिंग स्कैन। फॉर स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर हम अपना पीएनआर नंबर देखते हैं कि मेरा पीएनआर नंबर कहाँ है, ये है, अच्छा मेरी सीट कौन सी है, ये वाली, मेरा नाम सही लिखा है कि नहीं, तो वी आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पहली टेक्निक जो स्किमिंग है, उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट को क्विकली पढ़ते हैं, ये देखने को कि मेरे काम का है कि नहीं, या इसका ओवरऑल
मतलब समझने के लिए। दूसरी टेक्निक में हम या तो रोल नंबर खोज रहे होते हैं या लॉटरी का नंबर Yes. या सीट नंबर, दोनों में डिफरेंस है ना। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पे, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग वही होती है जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में करते हो। आप अपनी टेक्स्ट बुक को क्या स्किम करते हो कि जल्दी से देख लिया चैप्टर, ऐसा करते हो क्या? No, sir. नहीं। क्या स्कैन No, करते sir. हो कि चलो इसमें एक ही चीज पढ़ लेते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हो क्या? No, sir. नहीं। तो जब आप पूरी चैप्टर को 2-3 बार एकदम डीप में जाके समझ समझ के पढ़ते हो, तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड intensive reading. For example, reading a course book or a text book. TEXT, text. ठीक है, समझ में आ गया? नहीं तो इंटेंसिव तो समझ में आ गया। अब Yes, sir. इसके उल्टा जब हम एक नॉवल पढ़ते हैं, दैट इज रीडिंग फॉर अ प्लेजर, लाइक स्टोरी बुक, नॉवल, मैगजीन, फिल्मी दुनिया के बारे में, देन तब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं क्या? No, sir. नहीं, वो तो हल्की फुल्की चीज समझ में आ जाती है कि अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म आ रही है, आमिर खान का कौन सा क्या चल रहा है। ये जब हम करते हैं, दैट इज रीडिंग फॉर प्लेजर और एज एंटरटेनमेंट और एज अ हॉबी, एंड रीडिंग अ स्टोरी बुक, नॉवल, मैगजीन, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ रीडिंग समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. Clear. तो अब हमारे पास कितनी तरह की रीडिंग होगी, बताओ एक एक करके। Sir, do I have to explain all? हाँ, आई वांट टू चेक वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। Okay, sir. So first is skimming reading. In skimming reading, we just go to that gist of the paragraph. नहीं That is नहीं, the basic information. जिस नहीं, हम क्या करते हैं, आप मैं एग्जांपल आपको तभी दिया कि वी क्विकली गो थ्रू द मटेरियल। Quickly go through. क्विकली मतलब जिस्ट में तो जाते ही नहीं है, जिस्ट तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जिसमें होता है कि हम उसको Gist- सारांश किस चीज का आप ढूंढोगे ना, तो उसके लिए मतलब तो आपने पूरा पढ़ लिया। इंटेंसिव रीडिंग करके सारांश या जिस्ट निकलती है ना। तो स्किमिंग मुझे इसका जिस्ट मतलब ऊपर ऊपर पढ़ना होता है। नहीं, जिस्ट का मतलब तो डिफरेंट, आपको मतलब आप जिस्ट का जो वर्ड है ना उसका गलत प्रयोग कर रहे हो। जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का सारांश। जैसे मैंने पूरी गीता पढ़ी तो उसका सारांश क्या निकला? कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अब इतना कंफ्यूजन है ना, अब छोटा सा सारांश निकालने के लिए पूरी गीता को पढ़ना पड़ता है। लेकिन स्किमिंग में हम पूरी गीता नहीं पढ़ते, हम क्विक रीडिंग। सा ऊपर ऊपर से पढ़ के क्विकली देख लेते हैं कि हमारे काम का है कि नहीं। तो स्किमिंग इज डिफरेंट, जिस्ट नहीं पढ़ते उसमें, है ना। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। Yes, sir. Skimming reading means to quickly read and to capture our the information which we require. नहीं, फिर से देखो, स्किमिंग इज टू क्विकली रीड समथिंग एंड गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द होल थिंग। जनरल आइडिया, Yes, ठीक है। general idea. स्कैनिंग, स्कैनिंग बताओ बेटा। सर स्किमिंग रीडिंग में वो था ना कि अगर अपने काम की चीज होगी तो फिर अपन रखेंगे, तो वो वाला। हाँ, तो वो आप सरसरी निगाह से देख के भी समझ जाओगे ना कि अरे ये अच्छा कोचिंग का है। कोचिंग कौन सी? मेरे को तो कोचिंग करनी है इकोनॉमिक्स की, ये तो मैथ्स का है, मेरे काम का नहीं है। तो आपने जल्दी से देख के पहचान लिया ना। यस सर। हाँ, तो ओवरऑल देख लेते हो आप, है ना। लेकिन स्कैनिंग में आप एक पर्टिकुलर चीज को ढूंढ रहे हो, जैसे आपका रोल नंबर, लॉटरी का टिकट या आपकी सीट नंबर। यस सर। है ना। स्कैनिंग समझाओ क्या होता है। यस सर। सर इन scanning reading, we search only for a particular thing, we read only for a specific thing. हाँ, और पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंटेड चीज को हम ढूंढ रहे हैं। ये हमारा रोल नंबर भी हो सकता है, हमारी लॉटरी का टिकट का नंबर, हमारा सीट नंबर, हमारा पीएनआर नंबर, सब। अब थर्ड, इंटेंसिव रीडिंग, ये तो बहुत इजी है। ये क्या होता है? Sir, we go in intensive reading, we go in depth for reading so that we can capture all the things what is being written. हाँ, in intensive reading we understand and read everything just like textbooks. Okay, we read slowly and understand everything in depth. And what is extensive reading? Sir, extensive reading means reading for pleasure. Pleasure, or reading as a hobby. For example, just as we read novels, story books or magazines, है ना, हल्की फुल्की रीडिंग जो हमारे दिल। देखो अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो दिमाग में दर्द होता है, और
नॉवेल्स पढ़ते हो तो आपको नींद आती है, आपको रिलैक्स मिलता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, राइट? ठीक है, अभी हो गए 4 टाइप्स। अब आते हैं हम लोग Yes. 5th टाइप, विच इज कॉल्ड वर्ड टू वर्ड रीडिंग। अब ये वर्ड टू वर्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मेरे पास कोई कानूनी नोटिस आ जाए, है ना, जैसे कि नोटिस को छोड़ो, अब जैसे कि मान लो एक जैसे अभी उनकी डेथ हुई है, जो अपने एमडीएच मसाले वाले हैं, एमडीएच मसाले वाले सर, वो जो Yes, sir. है ना, उनकी डेथ हुई ना, तो वो हाँ बहुत, सर, बहुत बड़े करोड़पति हैं, एमडीएच मसाले वाले हाँ बहुत बड़े करोड़पति हैं। अब उनकी जब डेथ हुई तो उनके सामने जो उनके जो रह गए हैं, है ना, उनके जो वंशज हैं, उनके जो सक्सेसर्स हैं, तो वो लोग क्या पढ़ रहे होंगे? उनका वसीयतनामा, हिज विल, है ना। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वसीयतनामा और विल? सर मीन्स प्रॉपर्टी। हाँ, मतलब कि वो किसके नाम अपनी पूरी जायदाद लिख के गए, वो अपनी विल में लिखेंगे। विल क्या होता है? एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट, उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वसीयतनामा। कि किसके Yes, नाम पे, sir. मान लो उनके 5 बच्चे हैं, 2 लड़की 3 लड़के, तो उनकी जो करोड़ों की एम्पायर है, वो किसके नाम पे कितना किया उनने, तो उनके साथ 5 बच्चे बैठ के क्या पढ़ रहे होंगे? उनका वसीयतनामा, राइट? तो वसीयतनामा जब पढ़ेंगे, क्या वो स्किमिंग करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, इंटेंसिव रीडिंग करेंगे या एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे? सर इंटेंसिव। इंटेंसिव नहीं करेंगे, वो इंटेंसिव से भी ज्यादा इंटेंसिव करेंगे। इंटेंसिव तो ठीक है, इंटेंसिव से भी एक स्टेप आगे होता है वर्ड टू वर्ड, मतलब कि उसके अंदर एक एक शब्द एक कानूनी नोटिस में या फिर एक वसीयतनामा में इंपॉर्टेंट रहता है, और कभी कभी उसको समझने के लिए भी वकील की सलाह लेनी पड़ती है, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो जब हम ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग, जो एक्सटेंसिव, सॉरी, इंटेंसिव से भी ज्यादा इंटेंसिव रहता है। इंटेंसिव में तो आप सर लीगल, हाँ सर लीगल डॉक्यूमेंट या फिर बैंक डॉक्यूमेंट। हाँ, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि बहुत ज्यादा आपको, या तो आपका आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है, जिसको आपको समझने के लिए वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़े, और उसको समझने के लिए भी किसी किसी उसी पर्टिकुलर फील्ड के बंदे की मदद लेनी पड़े, जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंट आपका सीए जो देखता है ना, आपका अकाउंट्स देखता है, इस तरह की रीडिंग को कहते हैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि पति पत्नी है, एक को आ गया तलाकनामा, है ना, डिवोर्स का वो, तो उसको वो क्या इंटेंसिव या एक्सटेंसिव या वैसे पढ़ेगा? नहीं, वो एक एक शब्द पढ़ेगा। या मान लो पुलिस का नोटिस आ गया, है ना, या फिर आपको नगर निगम का नोटिस आ गया, तो ये सारे जो लीगल कानूनी नोटिस होते हैं वो हर समय वर्ड टू वर्ड पढ़े जाते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड का बहुत डीप इंपैक्ट रहता है, राइट? सो व्हेन द टेक्स्ट इज नॉट अंडरस्टूड इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड रिक्वायर्स स्लो, केयरफुल एंड एनालिटिकल रीडिंग एंड ऑल्सो हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। हाँ, लिखा है ना, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ये है ना। When the text is not understood in the first instance, मतलब कि पहली बार में समझ में ही नहीं आता, टेक्स्ट बुक तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट की जो जो शब्दावली रहती है, यू नो, द वे द वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लीगल डॉक्यूमेंट, दे आर नॉट अंडरस्टूड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब पहली बारी में देखने में समझ में नहीं आते, एंड दे रिक्वायर देयरफॉर स्लो, केयरफुल एंड एनालिटिकल रीडिंग, मतलब एक एक शब्द को समझ समझ के पढ़ना। ऐसी रीडिंग को, जो कि हम लोग कानूनी दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्निक अपनाते हैं, उसे कहते हैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग, है ना, वर्ड टू वर्ड। समझ में आ गया ना ये? और ये पहले चारों से अलग है ना, पहले चारों से अलग है ना, जो टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किमिंग से। यस सर, इट्स डिफरेंट। यस सर। तो अब बताओ बेटा, वर्ड टू वर्ड रीडिंग क्या होती है? Yes, sir. So, word-to-word reading is that type of reading in which it require sir analytical. स्लो एंड केयरफुल। It require a higher understanding, like an official document, legal document, and bank document. बिल्कुल सही। अब आता है लास्ट। एक्चुअली ये लास्ट कोई रीडिंग टेक्निक नहीं है। व्हेन यू लर्न, जैसे कि मैंने बताया ना कि रीडिंग टेक्निक्स कितनी तरह की है, जो आपके देखो आपके स्क्रीन पे है, रीडिंग टेक्निक्स 5।
लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि कौन से टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है, जैसे मैं आपको कोई भी टेक्स्ट दूं तो आपको मालूम चलेगा हाँ इसको तो स्किम करना है, नहीं इसको स्कैन करना है, इसको इंटेंसिवली रीड करना है, इसको वर्ड टू वर्ड रीड करना है, और इस वाले को तो हल्के फुल्का एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है। जब आपको ये टेक्निक समझ में आ जाती है कि कौन से टेक्स्ट में कौन सी टेक्निक लगानी है, तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और उसी को कहते हैं स्पीड रीडिंग। So when you understand which technique to apply to which text, then automatically your reading speed improves. है ना, automatically your reading speed improves. So what is word to word so what is speed reading? Speed reading is this skill is acquired after much practice. जब आप खूब प्रैक्टिस करते हो पढ़ने की तो अपने आप आपकी स्पीड रीडिंग हो जाती है. That is when you know which technique of reading is to be applied for which kind of text. जब आपको ये महारत हासिल हो जाता है तो अपने आप आपकी रीडिंग स्पीड चौगनी इंप्रूव हो जाती है, और आप फटाफट सारे, आपको एकदम से लीगल डॉक्यूमेंट मिला तो आपको मालूम है कैसे करना है, आपको टेक्स्ट बुक मिली तो आपको मालूम है कैसे रीड करना है, आपको कोई पैम्पलेट जैसा कुछ मिला तो आपको मालूम है कैसे करना है. तो व्हेन यू मास्टर द आर्ट ऑफ अप्लाइंग विच टेक्निक to be used in which kind of reading, then automatically your speed of reading improves. Okay, and you become a speed reader. You become a speed reader. So different reading techniques are needed to read a variety of text in order to understand the concept or enhance your knowledge. है ना, तो किस तरह का टेक्स्ट आप देख रहे हो, उसके अंदर कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए. जब आपको महारत हासिल हो जाता है तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है. और ये दिस इज वेरी नेसेसरी टू मेक योर रीडिंग मोर मीनिंगफुल. मतलब आपको अपनी रीडिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, एंजॉयबल बनाने के लिए आपको ये सारी टेक्निक्स का मालूम होना चाहिए. है ना, हम लोग, मैंने आपको बताया ना, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो वैसे आप अपनी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते, वैसे आप अपना नॉवल नहीं पढ़ सकते. तो हर एक टेक्स्ट के लिए, हमारी रिलीजियस बुक के लिए अलग तरीके का होता है, हमारी कॉमिक्स के लिए अलग तरीके का होता है, हमारी अकाउंट्स की बुक के लिए अलग तरीके का होता है. तो जब आपको ये टेक्निक्स मालूम चल जाती हैं तो अपने आप आपकी स्पीड रीडिंग हो जाती है. यहां तक की बात बेटा समझ में आ गई? यस सर, क्लियर. ठीक है. अब हाउ टू इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. है ना. अच्छा आप बताओ, अगर आपको अपना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का, सिर्फ रीडिंग का इंप्रूव करना है तो क्या अच्छा होना चाहिए आपका? वोकैबुलरी. वोकैबुलरी, बिल्कुल सही. क्योंकि कहां पर अपन लोग अटकते हैं? वोकैबुलरी में ही. इसलिए मैंने आपको पहला सेशन बताया है वोकैबुलरी का. आपको डेली 3 वर्ड्स याद करने हैं. अगर आपने वो कर लिए और आपको कोई सेंटेंस मिला तो आप देखो, आपकी स्पीड, अगर रीडिंग की स्पीड भी अच्छी हो गई, लेकिन अगर वोकैबुलरी कमजोर हुई तो वहां तो अटक ही जाओगे ना. फिर आपको रुकना पड़ेगा, डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, उसको रेफर करना पड़ेगा. तो आपको वोकैबुलरी को साइड बाय साइड तो इंप्रूव करना ही करना है. क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप, इफ यू आर इन ऑन अ वेरी गुड पोजीशन, देन यू विल हैव वेरी लेस टाइम. अब उस कम समय में आपको चीजों को समझना है, जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ना है, तो उस समय आपकी वोकैबुलरी आपके काम आएगी, ताकि आप efficiently you should be able to read a lot of text, right? समझ गए बेटा यहाँ तक? yes, sir. अब टिप्स, yes, sir. कुछ टिप्स हैं कि आप अपनी रीडिंग हैबिट्स कैसे इंप्रूव करें. इसको आप पढ़ो. Yes, sir. Tips for reading effectively. Read a variety of materials as found in the newspaper. इसका क्या मतलब है? एक एक करके बताओ, क्या मतलब हुआ इसका? Sir, we should read variety of newses in the newspaper. हाँ, इसका मतलब ये है कि हमको एक जैसी चीज नहीं पढ़नी. जैसे मान लो मुझको कॉमिक्स पढ़ने का शौक है, तो मैं 1 लाख कॉमिक पढ़ चुका हूं, उसके सिवा मुझको कुछ पढ़ना ही नहीं अच्छा लगता. ऐसा नहीं करना चाहिए. हमको वैरायटी ऑफ मटेरियल पढ़ना है. जैसे कि एक न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में क्या क्या आता है बताओ? सबसे आगे हेडलाइंस आती है ना. उसके बाद पेज 3 में आता है सिटी की इंफॉर्मेशन. फिर एडिटोरियल होता है, उसमें बीच के पन्ने पे एडिटोरियल होता है ना. यस सर.
फिर एक पन्ना प्लॉट्स होता है वगैरह, बिजनेस न्यूज का पन्ना होता है, स्पोर्ट्स। हाँ फिर एक सर, स्पोर्ट्स का होता है ना, यस फिर एक इंटरनेशनल, सर, सोशल न्यूज, कौन सी, कल्चरल न्यूज, नेशनल न्यूज, रिलीजियस। फिर इंटरनेशनल न्यूज होती है, और लास्ट के पन्ने पे फिर से हेडलाइंस होती है सबसे आखिरी पे। यस, यस सर। तो न्यूज़पेपर एक 25 पेज का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स रहती है। उसमें एक साइंटिफिक इन्वेंशन भी रहेगा, उसमें एक काम की चीज भी रहेगी, उसमें क्या बोलते हैं, इनके बारे में भी रहेगा, राष्ट्रपति के बारे में, फिल्मी कलाकारों के बारे में, एडिटोरियल का अलग स्टैंडर्ड होता है, लेटर्स टू द यस, एडिटोरियल, मतलब कि वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स रहते हैं। तो न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है जिसमें वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स रहते हैं। तो आपको अपनी अगर रीडिंग स्पीड सही करनी है तो वैरायटी ऑफ मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिल्मी दुनिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और लोकल पॉलिटिकल न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज ये भी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा करके आपको अलग अलग वेराइटी ऑफ स्टफ पढ़ के अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पहला टिप ये है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, दूसरा दूसरा पढ़ो आप, क्या लिखा है? सेकंड, सर्कल अननोन और अनफैमिलियर वर्ड्स एंड लुक देम अप इन द डिक्शनरी। हाँ, अब मान लीजिए मैंने रोज आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें से नेचुरली बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, पर मैंने यस सर, उन डिफिकल्ट वर्ड्स को कभी देखा ही नहीं पलट के। तो एक तो मेरे को जो लिखा है वो समझ में नहीं आएगा, दूसरा मेरी वोकैबुलरी भी इंप्रूव नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो यस सर। यहीं से आपको डेली 2-3 वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, है ना। तीसरा बताइए। आफ्टर रीडिंग, recall as much of the information as possible, understand the gist। हाँ, अब देखिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने अकाउंट्स की किसी चीज पे एक चैप्टर पढ़ा, अब आप थोड़ी देर के लिए अपनी किताब बंद करके आंख बंद करिए एंड ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न, राइट। एंड रिकॉल का मतलब ये नहीं कि पूरा मेरे को एक एक वर्ड रिकॉल करना है, मेरे को क्या रिकॉल करनी है, उसकी जिस्ट। जिस्ट का क्या मतलब होता है? समरी, सारांश, है ना। मैंने एक 5 पेज का चैप्टर पढ़ा, पर उस चैप्टर को मेरे को समझाना है तो मैं उसको एक पैराग्राफ में समझा पाऊं, ऐसे रिकॉल करना है। इसी कहते हैं टू रिकॉल व्हाट यू हैव रेड एंड अंडरस्टैंड द जिस्ट। अंडरस्टैंड उसका समरी, समरी मतलब जिस्ट, है ना, कंक्लूजन, है ना। फोर्थ पढ़िए, क्या लिखा है? फोर्थ, read interesting the subject matter to improve your reading skill। द गलत लग गया। रीड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स। अब क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई चीज पसंद नहीं है और जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए कुकिंग पसंद है तो ट्राई टू रीड समथिंग ऑन कुकिंग। इससे क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा, प्लस आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। कुकिंग के ऊपर भी अलग अलग वेराइटी ऑफ डिफिकल्टी का मटेरियल मिल जाएगा आपको, मिलेगा कि नहीं? यस सर। है ना। जैसे मान लो मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है, तो खाना बनाने की विधियां सिंपल भी हो सकती हैं, डिफिकल्ट भी हो सकती हैं। लेकिन अगर मुझे खाना बनाना पसंद है और उस पर मुझे कुछ पढ़ने को मिल रहा है तो मैं, हाँ, मतलब उसको आगे बढ़ के पढ़ूंगा, क्योंकि इट इज माय हॉबी। तो आपको अगर अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है तो आप उस विषय में ज्यादा पढ़ें जिसमें आप इंटरेस्टेड है। तो दीज 4 आर टिप्स टू इंप्रूव योर रीडिंग skills. First is read a variety of materials. Second, circle unknown words and try to look them up in the dictionary. Third, after reading, try to recall the gist. Fourth, read interesting subject matter so that you improve your reading skills. तो ये चारों चीजें बेटा लगातार करनी पड़ेगी। इससे अल्टीमेटली फायदा क्या होगा कि आपकी स्पीड रीडिंग हो जाएगी। You will be able to comprehend things in a better manner as compared to your competitors, yeah, as compared to your colleagues, right? Next, अब comprehension का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, है ना। अंडरस्टैंडिंग फॉर गुड कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले क्या करो कि जब भी आपको कोई चीज, अब ये टेक्निक बता रहा है, देखो अब हमको 5 तरह की रीडिंग समझ में आ गई, तो अब हम कैसे इसको अप्लाई करें वो ये बता रहा है ना। तो अब ये जो पोर्शन है वो आपको बताएगा कि स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, वर्ड टू वर्ड को हम कैसे यूज करें। तो पहला इसमें क्या लिखा है? स्किमिंग एंड स्कैनिंग। बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग, टेक अ मोमेंट टू प्रीव्यू द टेक्स्ट। जैसे आपके सामने कोई नया टेक्स्ट आए ना, तो उसको प्रीव्यू करो, रीड इट क्विकली विदाउट पॉजिंग, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड स्किमिंग,
कि जैसे कुछ आपको मिले तो सबसे पहले उसका पूरा मीनिंग समझ लो फटाफट उसको देख के, सुपरफिशियली। Yes, sir. जब उस समय देखें, अच्छा किसी चीज को पढ़ने का तरीका क्या है, पे अटेंशन टू द हेडिंग। अब जैसे मान लो आपने न्यूज़पेपर उठाया, तो आप उसमें से क्या चीज देखते हो, हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखा रहता है, हेडिंग में दो चार एक बहुत ही अट्रैक्टिव से वर्ड रहते हैं। वो हेडिंग में, हेडिंग पढ़ के आपको ये समझ में आता है कि इसके अंदर क्या होगा, मतलब Yes, कि sir. Content. कंटेंट क्या होगा इसका, है ना। तो सबसे पहले heading is printed at the top of the page which includes the subject matter. Title tells you what the text is all about. जैसे मान लो कोई फिल्म का टाइटल है, तो वो टाइटल ही बताता है आपको कि अंदर जाके फिल्म कैसी होगी। इस तरह टाइटल किसी भी सब्जेक्ट मैटर का बताएगा कि अंदर क्या होगा। फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स क्या होता है कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है। मान लो आप कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें एक फोटो लगी है, फोटो देख के आपकी अंडरस्टैंडिंग 10 गुना बढ़ जाती है और आपको पूरा Yes, sir. मटेरियल अच्छी तरह समझ में आता है। फिर कैप्शंस, कैप्शंस होते हैं जो कमेंट्स, पिक्चर के नीचे कैप्शंस रहते हैं ना, ये फोटोग्राफ किस चीज की है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा। बढ़ती है ना। उसके बाद फिगर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स रहते हैं, उससे आपको पूरा एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ है, इसमें से गांव में 70 करोड़ लोग रहते हैं और शहर में भी 70 करोड़ रहते हैं। ये अगर आपको ग्राफ के जरिए समझाया जाए तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वेरी इजीली। होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ। इसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग इज अ शॉर्ट आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट कंटेनिंग ऑल इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे मान लो आपने 5 पेज का एक चैप्टर पढ़ा, है ना, नेहा ने 5 पेज का एक चैप्टर पढ़ा। जब वो समरी लिखने बैठेगी नेहा, तो कितना लंबा होगा बेटा, कितने वर्ड्स का होगा? Sir, 200, 250 words. हाँ, मतलब कम से कम अगर आपका चैप्टर जो है वो 5000 वर्ड्स का है, तो उसकी जो जिस्ट है ना, उसका भी एक फॉर्मूला रहता है कि इतनी, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज हमको Yes, फिर sir. हम नोट्स से बनाते हैं। आप नोट्स बनाते हो अपने किताब के नोट्स? Yes, sir. तो आपके जो नोट्स होते हैं उसके वर्ड्स आपके चैप्टर से कम रहते हैं ना, 1/10 होते हैं। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला हम जब जिस्ट बनाते हैं तो लगाना पड़ता है। इसको हम आगे और समझेंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग द जिस्ट, इट इज टू अंडरस्टैंड द Yes. जनरल मीनिंग। मैंने बताया कोर मीनिंग। एक तो होता है समरी, कि मैंने एक 5 पेज का चैप्टर को 50 या 100 वर्ड में लिख दिया, तो वो उसकी समरी हो गई। जिस्ट क्या होती है, उसका सारांश, उससे भी छोटा। एग्जाम्पल Yes, दिया sir. मैंने, महाभारत का एग्जाम्पल दिया ना आपको। आपने महाभारत की किताब पढ़ी अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह या कोई मनोरंजन में? Mahabharat. Yes, sir. तो उसका सारांश क्या है, कर्म कल फर्म की इच्छा नहीं कर। सारांश कितनी Yes. शब्दों में, एक सेंटेंस में। और महाभारत अपने आप Yes, में sir. कितना बड़ा सा मोटा सा डॉक्यूमेंट है कि नहीं? Yes, sir. अब आपको समरी और जिस्ट के बीच में समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? Yes, sir. Just is a very small sentence, like sentence, and summary is of स्लाइटली बिग, 250 words. स्लाइटली बिग। लेकिन दोनों आप Yes. तभी बना सकते हो जब आपने इंटेंसिव रीडिंग करी, है ना। लास्ट पॉइंट, नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग क्या होता है कि जैसे मैंने आपने चैप्टर पढ़ा, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर ली और फिर उसको अपने वर्ड्स में नोट्स बना लिए। अगर आप वैसी की वैसी चीज कॉपी करोगे अपनी किताब से, तो क्या वो नोट्स कहलाएंगे? No, sir. कभी कभी करना भी पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर नोट्स मेरी लैंग्वेज में होता है। क्यों होते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले मैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता हूं, मैं अपने नोट्स पढ़ता हूं, क्योंकि समय कम रहता है ना। Yes, sir. पूरे साल भर मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी, उसमें से नोट्स बना लिए। एग्जाम के 3-4 दिन पहले मैं सिर्फ नोट्स पढ़ता हूं, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक को मेरे ही वर्ड्स में लिख के बताते हैं और नोट्स मेरे ही वर्ड्स में, मेरी हैंडराइटिंग में। तो मेरे को उसको समझने में आसानी रहती है कि नहीं, Yes, sir. है ना। तो अब हम जब पढ़ें तो क्या क्या करें? सबसे पहले स्किमिंग और स्कैनिंग करें। दूसरा, हेडिंग को पढ़ें, टाइटल को पढ़ें, फोटोग्राफ्स को समझें, कैप्शंस को देखें, फिगर्स, बार डायग्राम, पाई चार्ट्स, इस तरह की चीजें हो तो उसको और डीप में स्टडी करें, समराइज करें, उसकी जिस्ट को अंडरस्टैंड करें और लास्ट में उसके नोट्स बनाएं अपनी लैंग्वेज में। It is writing down important information, ideas, facts, viewpoints, and arguments contained in the written text for future reference in order to recall the main ideas of the text. Okay? So, अब क्या है बेटा कि कोई भी एक नई स्किल अगर आपने 21 दिन तक प्रैक्टिस करी,
तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। अब जैसे मैंने आपको रीडिंग टेक्निक्स बताए, अगर आपने इसको अगले 20 दिन थोड़ा थोड़ा सा किया, इंप्लीमेंट किया, तो ये आप अपने आप इसके अंदर एक महारत हासिल कर लेंगे। इसलिए लास्ट में क्या लिखा है इसमें कि डू दिस फॉर 21 days एंड यू विल बिकम एन एक्सपर्ट बिकॉज इट विल बिकम एन हैबिट। ठीक है ना, पूरे चैप्टर समझ में आ गया? यस सर। तो ये आपको आपकी पढ़ाई में भी मदद करेगा। आपको अब जब भी कोई टेक्स्ट मिले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये किस तरह का टेक्स्ट है और मुझे इसमें से कौन सी टेक्निक अपनानी है। शुरू में दिक्कत होगी, बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो नाउ वी टेक अ 5 minutes break and after that we'll assemble at around 8 o'clock. Is it okay? Okay sir, then we will start new chapter. New chapter, writing skills. Okay sir. ठीक है, okay.